Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial. And this is the second lecture of neural tissue. In our previous lecture yesterday, we have discussed the general introduction of neural tissue along with the structure of neurons. Today I am going to tell you a little bit more about the structure of neuron, synapse and types of neuron. So first let us have a quick revision of yesterday's lecture, what we have learned, and then we will be continuing that part. So continuation of neural tissue. Neural tissue is having two special property. One special property was excitability, that under a given stimulus it can generate action potential, and that action potential which has been generated, it could be transferred to the other cell, that is conductivity. So excitability and conductivity are two common properties of neural tissue, and no fun in telling that neural tissue is ectodermal in origin with the exception of microglial cell as well as with the exception of dura mater. So component of neural tissue was, there are certain part which is conductive in nature, we call that neurons, and other part which is not conductive in nature, which is non-neuronal part, and we call that glial cell to be specific, macroglial and microglial, and other cell like ependymal cell and neurosecretory cells are also there. So in the structure of neuron, we have discussed two things. The first thing was that there is something which we call cell body, and this cell body is having numerous small processes which has been arising, and these small processes are referred as to dendrite, right? And there was a single long process which arises from here. The part from where this long process lies, we call that axon hillock, the most sensitive part, and then the long process goes like this, and this is what we call axon. Axon was been branching in the terminal end, we call that axon arborization or terminal arborization, and there are certain knob-like structure which are present there, we call that presynaptic knob, and certain vesicles are present here, synaptic vesicle, which has been filled by neurotransmitter. In the center of cell body, there was a very prominent nucleus along with one or two nucleolus. The cytoplasm which is present in dendrite as well as the cytoplasm which is present in cell body, we call that neuroplasm, and neuroplasm is having all the cellular organelle with the exception of centriole. It consists of numerous mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi bodies, fat bodies, neural tubules or microtubules, actin filament, as well as special granular structure which is actually composed of rough endoplasmic reticulum and ribosomes. And what these structures are known as nasal granules, and nasal granules are the site of synthesis. तो आपसे पूछा जाएगा nasal granules कहाँ के बने हैं, you will answer they are made up of rough endoplasmic reticulum and ribosomes. Moreover, on the part of that axon in peripheral nervous system, there are certain special cells which are present like this, which actually wrap the axon like this, and these special cells are referred as to Schwann cells. And what is the function of Schwann cells? Schwann cells are the cells which are involved in the synthesis of myelin. So Schwann cells are the cells which are involved in myelination. Over Schwann cells, there is cytoplasmic sheath which is present like this, and this cytoplasmic sheath is known as neurilemma. The cytoplasmic sheath of Schwann cells are referred as to neurilemma, right? This is what we have discussed yesterday. And in Schwann cells, there is a flat and peripheral nucleus which has been located something like this. Schwann cell, whenever at parts, when this axolemma invaginate in Schwann cells, what happen? Schwann cells start making a thick sheath of plasma membrane, which is mainly made up of lipid, certain associated protein, and a lot of water. And what is the name of that sheath? We call that myelin sheath. And other name of myelin sheath is medullated sheath. So in nerves के लिए word use करेंगे, in neurons के लिए word use करेंगे myelinated or medullated neurons. Is that clear? Right. Then I told you certain regions where myelin sheath is absent, and these regions are known as node of Ranvier.
So what are nodes of Ranvier? These are the actual part in a myelinated nerve, in a myelinated neuron where myelin sheath is absent. So I give you the example. It's like electrical wire. What is present here? Exoplasm. What exoplasm consists of? Mitochondria plus neurofibrils. It does not have nasal granules. Discussed yesterday, right? So node of Ranvier are special areas where myelin sheath is absent. The region between one node of Ranvier to other node of Ranvier is referred as to internode. Is that clear? This is what we have learned yesterday, right? All right. तो कल यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हुआ था. मैंने माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में बताया था. आगे भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अच्छा, प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है? जहाँ जहाँ ये जो माइलिन शीथ है ये क्या काम करता है? ये एक इंसुलेटर का काम करता है. तो जो भी इम्पल्स ट्रैवल हो रहा है, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट. लेट्स से एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड हियर. जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड हो रहा है उसके हीट लॉस को कौन रोकता है? इट हैज़ बीन स्टॉप्ड बाय दिस माइलिन शीथ. So action potential keep on jumping from one node internode to other internode, right? From one node of Ranvier to other node of Ranvier. और इस कंडक्शन के लिए वर्ड यूज किया था saltatory conduction. The term saltatory refers to jumping. All right, and exoplasm is also present there. This all is exoplasm. So I guess this is the part which we have discussed yesterday. We have discussed that in detail. I am just giving an overview here. Why I have made this structure of neuron? I really want to clear certain other concepts. Okay, there is something. There is a pigment which keep on accumulating. A pigment which keep on accumulating around the nucleus of neuron ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एजिंग. जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक पिगमेंट न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्यूमुलेट होता रहता है. इस पिगमेंट का नाम होता है बेटा लाइपोफ्यूसिन. सो कोई भी आपको सैंपल मिला, उस सैंपल से न्यूरॉन का एज कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लाइपोफ्यूसिन. जितना ज़्यादा लाइपोफ्यूसिन होगा उतना ज़्यादा एज होगा. By definition, what is lipofuscin? Lipofuscin is a granular, something which look like brownish granular pigment. Lipofuscin कहाँ कहाँ मिलता है ह्यूमन बॉडी में? नर्व सेल के न्यूक्लियस के साथ साथ ये आपके मसल सेल में भी मिलता है. इन द मसल ऑफ हार्ट. एजिंग का जो मेजर आइडेंटिफिकेशन होता है वो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लाइपोफ्यूसिन होता है. सो इन द नियर टू द न्यूक्लियस ऑफ मसल सेल, near to the nucleus of neurons, a brownish pigment is formed. A brownish pigment is found, and that brownish pigment obviously is made up of lipid. A brownish pigment which is made up of lipid is found in the aging cells. In aging cells found in aging cells of muscles and nerves and neurons. तो लाइपोफ्यूसिन क्या होता है? एक ब्राउन कलर का ग्रेनुलर पिगमेंट है जो एज के साथ साथ एक्यूमुलेट होता रहता है. लाइपोफ्यूसिन बना होता है लिपिड का. एग्जैक्टली लाइपोफ्यूसिन होता क्या है? जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बहुत सारी सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनगल्फ कर लेता है मैक्रोफेज. तो जो लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है मैक्रोफेज की, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी उनको मटेरियल मिलेगा वो एक्यूमुलेट होता रहता है. तो लाइपोफ्यूसिन is formed, second let me write the definition here. Lipofuscin is formed due to oxidation and autophagocytic component of plasma membrane. जितने भी प्लाज्मा, देखो ऑटोफेगोसाइटिक का मतलब है अपनी ही कंपोनेंट को फेगोसाइटाइज कर लेना, अपनी ही कंपोनेंट को एनगल्फ कर लेना इज ऑटोफेगोसाइटिक कंपोनेंट. तो जितने भी
सेल के कंपोनेंट ऑक्सीडाइज्ड और ऑटोफेगोसाइटो होते हैं, उन कंपोनेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं लाइपोफ्यूसिन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं तो काहे के बने होंगे, लिपिड के, वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, एंड दे आर फाउंड इन द एजिंग सेल ऑफ मसल एंड न्यूरॉन। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि एजिंग न्यूरॉन को आप कैसे पता करते हैं, आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी एक्युमुलेशन ऑफ लाइपोफ्यूसिन। ठीक है बच्चों, नाउ more concepts or more things to discuss here. This is what we call dendrite, this is what we call cell body, cytosol, soma, perikaryon, and this is what we call axon. Membrane of axon is exolemma, cytoplasm of axon is exoplasm, which do not have nasal granules. Nasal granules are only and only found in dendrite and axon. Even axon hillock does not have nasal granules. ठीक है बच्चों, all right. अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको साइनेप्स के बारे में, या थोड़ा प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्स ही बता दूँ। यहीं पर दो तरह की न्यूरॉन हमारे पास होंगी। थोड़ा प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्स पे अगर मैं चलूँ, प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्स, प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल थ्रू ए माइलिनेटेड और थ्रू ए नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। कल बताया था चाहे माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड हो, पीएनएस में श्वान सेल हमेशा रहेंगी, और नोड ऑफ रेनवियर में भी न्यूरोलेमा होता है। तो अब वेरी ब्रीफ, जब हम ना नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो एक्शन पोटेंशियल, जनरेशन, कंडक्शन सब डिटेल में पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक को वहाँ छोड़ देते हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि माइलिनेटेड में फास्ट कंडक्शन होता है और नॉन माइलिनेटेड में स्लो कंडक्शन होता है। तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, आपके पास दो अलग अलग तरह के एक्सोन्स यहाँ मिलेंगे। लेट्स से ये जो एक्सोन है, इसके पास ये श्वान सेल्स हैं, और इन श्वान सेल्स ने माइलिनेशन किया हुआ है। ये श्वान सेल हो गई आपके पास, और इन श्वान सेल ने माइलिनेशन किया हुआ है, राइट। तो माइलिनेशन भी दिखा देता हूँ। लेट्स से माइलिनेशन हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय सम अदर कलर। दिस इज माइलिन शीथ हेयर, लाइक दिस, and this is myelin sheath here like this. साथ में इसका न्यूरोलेमा भी अगर मेंशन करें बच्चों, the न्यूरोलेमा it would be something like this. न्यूरोलेमा it would be cytoplasmic covering, it would be something like this. Am I clear up to here? एक केस तो ये होगा माइलिनेटेड का, और नॉन माइलिनेटेड की अगर बात करें, इफ आई एम मेकिंग ए नॉन माइलिनेटेड एक्सोन हेयर, उसके अंदर भी श्वान सेल्स होंगे, नॉन माइलिनेटेड के अंदर भी श्वान सेल्स होंगे, और यहाँ पर जो श्वान सेल्स हैं उनके पास न्यूरोलेमा तो होगा, पर उनके पास माइलिन शीथ नहीं होगा, राइट। उनके पास न्यूरोलेमा तो होगा, पर उनके पास माइलिन शीथ नहीं होगा। तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा नॉन माइलिनेटेड का, और एक रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा माइलिनेटेड का। अब देखो नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा, लेट्स से दिस इज वन पैच ऑफ द मेम्ब्रेन, अदर पैच ऑफ द मेम्ब्रेन एंड सो ऑन। एक्शन पोटेंशियल पहले यहाँ पर जनरेट होगा, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे जनरेट होगा, एंड सो ऑन। सो पैच टू पैच, जितने भी चैनल्स वाइज हम पैच डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी चैनल्स होंगे उन सब के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता चला जाएगा, राइट। लेट्स से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 100 पैचेस हैं, 100 डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स हैं। तो कितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा फ्रॉम ए टू बी, आंसर वुड बी 100 टाइम्स। केस 1। केस नंबर 2, अब माइलिनेशन की वजह से ये वाले एरियाज़ हैं ये सब कवर्ड हो गए हैं, और इन वाले एरियाज़ में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ही नहीं। तो जो भी एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ है, इट वुड बी ट्रांसफर टू हेयर ओनली। सो एक्शन पोटेंशियल कहाँ से कहाँ गया, फ्रॉम वन नोड ऑफ एनवियर टू अदर नोड ऑफ एनवियर, फिर यहाँ पर इंसुलेशन आ गया, इट वुड बी ट्रांसफर टू हेयर। सो इन दिस केस अगर दो ही नोड ऑफ एनवियर है तो कितने टाइम्स जनरेट होगा, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर 100 टाइम्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स जनरेट हो रहा है। यहाँ पर वो जंप कर रहा है फ्रॉम वन नोड ऑफ एनवियर टू अदर नोड ऑफ एनवियर, यहाँ पे यूनिफॉर्मली वो प्रोपोगेट कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कहाँ पर ज़्यादा क्विक हो रहा होगा, आंसर वुड बी माइलिनेटेड। और कहाँ पर ज़्यादा स्लो हो रहा होगा,
आंसर वुड बी नॉन माइलिनेटेड। सो कंडक्शन में आप क्या याद रखेंगे, इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन along with myelinated fiber is far more quicker than non-myelinated fiber। अगर हम एक जनरल रेंज की बात करें तो माइलिनेटेड में होता है अबाउट 100 मीटर पर सेकेंड और नॉन माइलिनेटेड में उसका 10वां हिस्सा अबाउट 8 to 10 मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो माइलिनेटेड में नॉन माइलिनेटेड से अबाउट 100 टाइम्स होता है। तो ये तो हमने एक रैंडम वैल्यू ले ली थी कि भाई 2 ही नोड ऑफ एनवीआर है, वो 100 पैचेज है यहाँ पर। तो व्हाट आई वाज रियली ट्राइंग टू टेल यू कि भाई माइलिनेटेड फाइबर के अंदर ड्यू टू माइलिनेशन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स तेज हो जाता है और माइलिनेटेड फाइबर में एक्शन पोटेंशियल एक नोड ऑफ एनवीआर से दूसरे नोड ऑफ एनवीआर पे जंप करता रहता है और इस प्रोपोगेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। जबकि नॉन माइलिनेटेड फाइबर में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर यूनिफॉर्मली प्रोपोगेट करता है और स्लो हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं साइनेप्स के ऊपर। ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। अच्छा, एक और चीज़ बची स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में, ये भी बता देता हूँ मैं। एक और चीज़ बची, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कोलेटरल फाइबर। कंसेप्ट ऑफ कोलेटरल फाइबर्स। देखो, कोलेटरल फाइबर्स are only present in myelinated nerve। पहला कंसेप्ट, in myelinated neurons they arises from nodes of Ranvier। तो नॉन माइलिनेटेड में तो नोड्स ऑफ Ranvier होगा ही नहीं, तो उनके अंदर कोलेटरल फाइबर होते ही नहीं है। और जो माइलिनेटेड नर्व है उनके पास नोड्स ऑफ Ranvier है और कुछ नोड ऑफ Ranvier से अराइज कर सकते हैं कुछ फाइबर जिनको बोलते हैं कोलेटरल फाइबर। बता देता हूँ, लेट्स से आपके पास एक एक्सोन है और ये जो एक्सोन है ये माइलिनेटेड है। तो माइलिनेटेड शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़े से श्वान सेल दिखा दीजिए सर। लेट्स से एक श्वान सेल और ये दूसरा श्वान सेल्स और ये श्वान सेल और ये श्वान सेल, ये न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। फिर सर इसके ऊपर न्यूलेमा दिखा दीजिए टू मेक इट कंप्लीट। एज आई टोल्ड यू, देखो कुछ चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। न्यूलेमा इज ऑलवेज प्रेजेंट, आइदर माइलिनेशन इज देयर और नॉट। तो नोड ऑफ Ranvier पे भी न्यूलेमा होगा, याद रखेंगे। और ये आपके पास हो गया माइलिनेशन हियर। दिस इज माइलिनेटेड, ये नोड ऑफ Ranvier, ये माइलिनेटेड, ये माइलिनेटेड, देन नोड ऑफ Ranvier और ये माइलिनेटेड। ये एक माइलिनेटेड एक्सोन का मैंने डायग्राम बनाया। अब ये जो ये रीजन है बेटा, ये रीजन होता है आपका नोड ऑफ Ranvier। कुछ जगह पर नोड ऑफ Ranvier से एक और नर्व फाइबर या एक्सोन अराइज होता है। एक एक्सोन अराइज होता है फ्रॉम द नोड ऑफ Ranvier और इस नर्व फाइबर के लिए, इस एक्सोन के लिए वर्ड यूज करते हैं कोलेटरल। इट इज लेटरली पोजिशन, कोलेटरल फाइबर। अब एक्सोन है तो आगे जाके ये भी एक्सोन टर्मिनल बना लेगा, एक्सोन है तो आगे जाके ये भी एक्सोन टर्मिनल बना लेगा। तो जो कोलेटरल फाइबर है वो जनरली जाके कनेक्ट होते हैं आपकी ग्लैंड्स के पास और आपके मसल्स के पास। तो कोलेटरल फाइबर का क्या कंसेप्ट होता है बेटा, कोलेटरल फाइबर जो है वो सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। वो अराइज करते हैं नोड ऑफ Ranvier से एंड दे इनोवेट और कनेक्ट विद मसल्स और ग्लैंड्स। अब ये जो कोलेटरल फाइबर है दे कुड बी माइलिनेटेड और दे कुड बी नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड होगा तो इम्पल्स जो है वो सॉल्टेटरी कंडक्शन करेगा और नॉन माइलिनेटेड होगा तो इम्पल्स जो है वो यूनिफॉर्म कंडक्शन करेगा। तो जब भी आप कभी कोलेटरल फाइबर का कंसेप्ट पढ़ो, कहीं भी कोलेटरल फाइबर टर्म पढ़ लो, तो प्लीज़ डू रिमेंबर कि जो कोलेटरल फाइबर होते हैं कुछ न्यूरॉन्स में उनके नोड ऑफ Ranvier से लेटरली एक लॉन्ग फाइबर अराइज हो जाता है, जिससे जो इम्पल्स है वो कुछ ऐसे पास करती है। वो इम्पल्स ऐसे पास करेगी तो मैं अभी एक और चीज़ बता दूंगा कि अवे फ्रॉम द सेंटर एंड टुवर्ड द सेंटर क्या मतलब होता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट क्या है यहाँ पर। अभी याद रखें, इम्पल्स ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सोन
axon which has, this is the branching of that axon to be exact. तो collateral fiber are the branching of axon at node of NVR and they eventually connect to glands or muscles. ठीक है बच्चों, ओके फिर से हम एक न्यूरॉन को उठा के लाते हैं, बार बार न्यूरॉन आ ही रही है बीच में क्योंकि ये चीज़ें हमें समझनी है। अब न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स ट्रैवल कैसे करती है, न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स ट्रैवल कैसे करती है, एक बहुत ही क्विक सा डायग्राम दैट्स वेरी इजी टू मेक इन न्यूरॉन। और ये आपके पास होगा डेंड्राइट और आपको सेंटर भी समझ में आ रहा होगा भी सेंटर क्या हो, ये आपके पास हो गया एक्सॉन और ये हो गया आर्बोराइजेशन ऑफ एक्सॉन, टर्मिनल आर्बोराइजेशन। ठीक है बच्चों, अब याद रखना डेंड्राइट से जब इम्पल्स आता है तो कुछ ऐसे ट्रैवल करता है, तो साइटोन पर अगर इम्पल्स आएगा तो वो भी ऐसे ट्रैवल करेगा और डेंड्राइट पर इम्पल्स आएगा तो भी वो ऐसे ट्रैवल करेगा। दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द सेंटर, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। एट साइटोन और एट डेंड्राइट द डायरेक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, द डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्टेंस इज सेंट्रीपीटल। एक्सोन में हमेशा, आई रिपीट, एक्सोन में हमेशा जो इम्पल्स ट्रैवल करेगा डेट वुड बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर लाइक दिस। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है और सिर्फ इस डायरेक्शन में होता है, इट इज सेंट्रीफ्यूगल। सो अलोंग विद द एक्सोन जो कंडक्टेंस होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, इट इज अवे फ्रॉम सेंटर, तो इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल। इट इज टूवर्ड्स द सेंटर, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर, तो इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपीटल। तो डेंड्राइट और सेल बॉडी में जो भी इम्पल्स है वो ट्रेवल करता है टूवर्ड्स द सेंटर, वो एक्सोन में हमेशा ट्रेवल करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, माने सेंटर से या फिर सेल बॉडी से वो एक्सोन टर्मिनल या टर्मिनल आर्बोराइजेशन की तरफ जाएगा। फिर लेट से, तो यहाँ पर कैसा होगा, एक्सोन में डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पर ये फाइबर कनेक्ट है किसी मसल के साथ और इस मसल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो इट इज आल्सो अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसको ना फाइबर को, कोलेटरल फाइबर को हम एक एक्सोन कंसिडर कर लेते हैं, कोलेटरल फाइबर को हम एक एक्सोन कंसिडर कर लेते हैं। तो कोलेटरल फाइबर क्या होते हैं, कोलेटरल फाइबर अराइज होते हैं नोड ऑफ एनवियर से, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में और कोलेटरल फाइबर जाके इनर्वेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों, कोलेटरल फाइबर could be myelinated or could be non-myelinated, majorly they are myelinated in nature. Then जो flow of impulse होता है, flow of nerve impulse होता है, वो डेंड्राइट और सेल बॉडी में towards the center होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल फ्लो, और इन एक्सोन इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फ्लो। ठीक है, तो फ्लो ऑफ द नर्व इम्पल्स भी समझ में आया, ये बेसिक्स बता रहा हूँ, डिटेल आगे पढ़ेंगे, और आपका जो कोलेटरल फाइबर है वो समझ में आया। अब बच्चों हम चलते हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स कितने तरह के होते हैं और कैसे इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। तो लेट अस लर्न अबाउट साइनेप्स। साइनेप्स वो पॉइंट होता है जहां पर दो एडजेसेंट न्यूरॉन आपस में कनेक्ट करते हैं। Definition of synapse. Synapse is the junction where two nearby neurons connect with each other. जहां पर दो नियरबाई न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे बच्चों साइनेप्स। अब ये तो समझ में देखो, दो न्यूरॉन होंगी, लेट्स से न्यूरॉन 1 एंड न्यूरॉन 2, ए एंड बी की बात कर रहे हैं हम। अब ये जो न्यूरॉन फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन आके कनेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो ये होगी आपकी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो साइनेप्स से पहले है, और ये होगी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक। अगर बी आके कनेक्ट कर रहा होगा ए में तो बी प्री साइनेप्टिक हो जाएगा, ए पोस्ट साइनेप्टिक हो जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा प्री साइनेप्टिक कैसे डिसाइड करते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक कैसे डिसाइड करते हैं। अब न्यूरॉन के अंदर तुमने इंपल्स पढ़ ली है कि एक्सोन में हमेशा
एक्सोन में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फ्लो होता है। तो जो प्री साइनेप्टिक होगा उसका कौन सा पार्ट आ रहा होगा यहाँ पर? आंसर वुड बी एक्सोन टर्मिनल। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा? आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी एक्सोन टर्मिनल, आर्बोराइजेशन ऑफ एक्सोन टर्मिनल। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास ये एक एक्सोन था, ये उसके पास डेंड्राइट, कितनी बार आप न्यूरॉन बनवाएंगे मुझसे? बनाते जाओ सर, सैंडविच थोड़ा ही बना, न्यूरॉन बना रहे हैं, एंजॉय इट। ये आपके पास एक न्यूरॉन है लेट्स से, और ये एक्सोन है, और ये एक्सोन आर्बोराइजेशन है। तो इम्पल्स कैसे फ्लो कर रहा होगा? इम्पल्स कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये न्यूरॉन कनेक्ट कर रहा है किसी और न्यूरॉन के साथ, लेट्स से दिस इज द अदर न्यूरॉन, दिस इज अदर न्यूरॉन हेयर, एंड दिस न्यूरॉन आल्सो हैव सम डेंड्राइट, एंड अ लॉन्ग एक्सोन लाइक दिस। तो हम इस वाले पॉइंट को पढ़ रहे हैं बेटा, जहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब मैंने पहले इस वाले पार्ट को मैग्नीफाई किया, ये क्या है? ये एक एक्सोन टर्मिनल है, दिस इज वन एक्सोन टर्मिनल। इस मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज करेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज करेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर सको तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ना कुछ वेसिकल्स होते हैं। क्या कहते हैं इन वेसिकल्स को? साइनेप्टिक वेसिकल्स। और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या फील्ड होता है? आंसर इज न्यूरोट्रांसमीटर। एक साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर कितने न्यूरोट्रांसमीटर? दे आर इन 1000, ऑलमोस्ट 10,000 पर साइनेप्टिक वेसिकल। सबसे पहले कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर हुआ था? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। उसको बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज। सो एसिटाइलकोलिन transferase is required for the formation of acetylcholinesterase. Anyways, अभी हम न्यूरोट्रांसमीटर को नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये बच्चे हो गए आपके पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो सेकंड मेम्ब्रेन होगा जिसके साथ ये अटैच करने वाले हैं, अभी ये वाली मेम्ब्रेन बनाना चाहूँगा मैं इन रेड। लेट्स से दिस इज द सेकंड मेम्ब्रेन, और ये जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज ऑफ डेंड्राइट, इसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इतनी चीज समझ में आई? तो बच्चों ये जंक्शन है, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? दिस जंक्शन इज साइनेप्स, अ जंक्शन बिटवीन टू, अ जंक्शन विच कनेक्ट टू नियर बाय न्यूरॉन्स विद ईच अदर इज नोन एज साइनेप्स। अब ये जो मैं साइनेप्स पढ़ा रहा हूँ ये ना एक तरह का केमिकल साइनेप्स है, क्योंकि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है। मैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी बताऊंगा आपको, अभी पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ। दोनों न्यूरॉन कुछ डिस्टेंस से अपार्ट होती है, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, थोड़ा बहुत स्पेस होता है, और स्पेस के अंदर भरा होता है एक फ्लूइड। पहले तो इस स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो दो न्यूरॉन्स हैं, नियर बाय न्यूरॉन्स, वो किस स्पेस से सेपरेट रहती हैं। उस स्पेस को कहते हैं बेटा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक अगर हटा दूं मैं, ये स्पेस है जो दो एडजेसेंट न्यूरॉन को अलग अलग कर रहा है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल साइनेप्टिक क्लेफ्ट। कितना होता है सर साइनेप्टिक क्लेफ्ट? इट इज अबाउट 200 आर्मस्ट्रॉम और 20 नैनोमीटर। तो दो एडजेसेंट न्यूरॉन आपस में अबाउट 200 आर्मस्ट्रॉम से अलग रहती है। जो ये फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पर, इसको बोलेंगे साइनेप्टिक फ्लूइड। जो ये फ्लूइड भरा है इसके लिए वर्ड यूज करेंगे साइनेप्टिक फ्लूइड। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे लाइक एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, यस, और वो एसिटाइलकोलिन को डाइजेस्ट करेगा, वो बाद की बात है। तो मेनली होता क्या है बच्चों कि भाई आपके पास एक्शन पोटेंशियल आया, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुँचा, एक्शन पोटेंशियल जाके दे आर सर्टेन केमिकल चेंजेस विच अकर इन मेम्ब्रेन। क्या केमिकल चेंजेस होंगे मैं आगे बताऊंगा। कैल्शियम आना शुरू हो जाता है अंदर, कैल्शियम आने की वजह से ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है जाके स्ट्राइक करेगा टू द
मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी लिपिड का बना है, ये भी लिपिड का बना है, तो दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। जब दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जाकर रिलीज हो जाएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब यहाँ पे स्पेशल रिसेप्टर होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, और जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच होगा इस रिसेप्टर पर, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पर जनरेट हुआ था वो प्रोपोगेट कर रहा है न्यूरोफिब्रिल्स की वजह से, यहाँ पे प्रोपोगेट कर रहा है लेट से माइलिनेशन की वजह से, और वो यहाँ तक पहुँचा। अब इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन के पास कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है बच्चों, तो साइनेप्स वो जंक्शन होता है जहाँ पे दो नियर बाय न्यूरॉन आपस में कनेक्ट करती है। अच्छी बात है, जब तक आप ये चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे तब तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी होंगी और आप अच्छे से समझ सकते हो। अभी फॉर द टाइम बीइंग साइनेप्स का कंसेप्ट बता दूं मैं। साइनेप्स वो एरिया होता है जहाँ दो नियर बाय जंक्शन आपस में अटैच होती है। साइनेप्स दो तरह के होते हैं, जो पहला साइनेप्स में पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। दैट साइनेप्स which I am going to discuss now और which I am discussing, that is what we call chemical synapse। दूसरा साइनेप्स होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में जो मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन कनेक्ट कर रही होती है दूसरे के साथ, जिसका एक्सोन टर्मिनल कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जिसका डेंड्राइट या कुछ और पार्ट भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है डिस्कस करेंगे। जिसका जो दूसरा पार्ट होता है, जो रिसीविंग न्यूरॉन होती है, उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं और जो रिसीव करता है न्यूरोट्रांसमीटर को। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। अच्छा, अब अगर इस साइनेप्स को आपको नाम देना है, कैन यू नेम दिस साइनेप्स हियर? दिस साइनेप्स इज रेफर्ड एज टू एक्सोडेंड्रेटिक साइनेप्स। दिस साइनेप्स इज रेफर्ड एज टू एक्सोडेंड्रेटिक साइनेप्स। तो एक्सोडेंड्रेटिक साइनेप्स क्या हुआ, जब एक एक्सोन कनेक्ट करता है एक डेंड्राइट से। क्या सर डेंड्रो एक्सोनिक साइनेप्स भी हो सकते हैं? क्या सर ऐसा भी हो सकता है कभी कि किसी का लेट से ये एक डेंड्राइट है, यहाँ पे एक डेंड्राइट बना लेते हैं हम, और ये इसकी एक्सोन हो गई, और ये सेल बॉडी का न्यूक्लियस, ये डेंड्राइट। क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरी का एक्सोन है, और ये डेंड्राइट इम्पल्स ट्रांसफर करे? हेयर आंसर वुड बी नो। डेंड्राइट पे इम्पल्स हमेशा कैसे होती है? सेंट्रीपीटल। तो कभी भी डेंड्राइट कनेक्ट नहीं करेगा एक्सोन के साथ, हाँ एक्सोन कनेक्ट करेगा डेंड्राइट के साथ। सो एक्सोडेंड्रेटिक साइनेप्स हो सकते हैं, डेंड्रो एक्सोनिक साइनेप्स नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, इज दैट कंसेप्ट क्लियर? तो साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स वो जंक्शन होता है जहाँ पर दो न्यूरॉन आपस में अटैच होती हैं। नोकिया का एक सिंबल आता था, कनेक्टिंग हैंड्स, कनेक्टिंग पीपल। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर विच हैज़ बीन कनेक्टिंग अवर न्यूरॉन्स? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज साइनेप्स। साइनेप्स का एक पार्ट होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए नाम ही केमिकल साइनेप्स है। केमिकल साइनेप्स में दोनों जो न्यूरॉन होती है वो कुछ स्पेस से अपार्ट रहती है, उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं साइनेप्टिक फ्लूइड, जिसमें कुछ अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। अभी एंजाइम्स का नाम नहीं बताऊंगा मैं, पर आगे चल के पढ़ोगे। मोनोएमीन ऑक्सीडेज इज देयर एंड एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इज देयर। खैर, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हुए हैं, ये जाके बाइंड करेंगे टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। फिर एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड द सेंटर जा रहा होगा। भाई ये डेंड्राइट है तो आगे क्या आएगा? सेल बॉडी। सेल बॉडी से कहाँ जाएगा? एक्सोन, एंड देन अलग साइनेप्स पे चला जाएगा। तो ऐसे एक्शन पोटेंशियल साइनेप्स की हेल्प से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया केमिकल साइनेप्स के बारे में। केमिकल साइनेप्स सबसे कॉमन है। अच्छा, साइनेप्स क्या क्या हो सकते हैं? एक्सोन डेंड्राइट के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये मोस्ट कॉमन साइनेप्स है हमारे बॉडी में, दैट इज द मोस्ट कॉमन साइनेप्स। दूसरा केस ये हो सकता है, एक एक्सोन दूसरी एक्सोन के साथ कनेक्ट हो रहा है, एक्सोनिक साइनेप्स। सर एक्सोनिक साइनेप्स कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सेल बॉडी है, और इस सेल बॉडी के आसपास ये न्यूक्लियस है, और ये इसके डेंड्राइट वाले प्रोसेस में बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया एक्सोन, और ये एक्सोन टर्मिनल हो गया। अब एक्सोन टर्मिनल नोड ऑफ एनवी ऑफ अदर पे जा रहा है। ये दूसरा आपके पास न्यूरॉन था, और ये उसका डेंड्राइट प्रोसेस और सेल बॉडी, एंड इट इज़ लाइक दिस। तो ये यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकता है, ये इसका नोड ऑफ एनवी और ये इसका एक्सोन टर्मिनल। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? डाईएक्सोनिक या एक्सोनिक साइनेप्स। तो
तो इट कुड बी लाइक, ये जो आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इट कैन कम एंड बाइंड ऑन डेंड्राइट, केस नंबर 1, इट कैन कम एंड बाइंड हियर, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्सोडेंड्रेटिक साइनेप्स, केस नंबर 1. केस नंबर 2, इट कैन कम एंड बाइंड हेयर, डाइएक्सोनिक. केस नंबर 3 भी होता है, देयर इज केस नंबर 3 कि भाई जो डेंड्राइट प्रोसेस है उस पर ना बाइंड करके सेल बॉडी पे आके बाइंड कर जाए. केस नंबर 3 वुड बी इट इज बाइंडिंग ऑन सेल बॉडी, उसको क्या नाम देंगे, एक्सोडेंड्रेटिक इज द मोस्ट कॉमन, एक्सोएक्सोनिक इज वन, एंड थर्ड वुड बी एक्सोसोमेटिक साइनेप्स. तो सोमा के ऊपर हो रहा है तो एक्सोसोमेटिक, एक्सोन के ऊपर होता है एक्सोएक्सोनिक, और डेंड्राइट के ऊपर बाइंड कर रहा है एक्सोडेंड्रेटिक. आपको अभी टिश्यू में ये याद रखना है कि जो मोस्ट कॉमन साइनेप्स होता है वो एक्सोडेंड्रेटिक होता है. द मोस्ट कॉमन साइनेप्स इज एक्सोडेंड्रेटिक. तो साइनेप्स की बात समझ में आई. अच्छा, मैं कल बता रहा था कि आपकी जितनी भी मेमोरी फॉर्मेशन होती है वो साइनेप्स के जैसे ही होती है. मान ले आप कोई भी चीज़ें ऑब्जर्व, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके ब्रेन के अंदर अलग अलग साइनेप्स बनते जा रहे होंगे, वैसे वैसे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर अलग अलग साइनेप्स बनते जा रहे होंगे. लेटर ऑन जब भी ये साइनेप्स किसी इंपल्स को ट्रिगर करेंगे तो सेम टाइप ऑफ मेमोरी रिवाइज होगी. क्लास में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ. तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा साइनेप्स वाला. अच्छा, ये तो हो गया केमिकल साइनेप्स. थोड़ा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के भी बारे में बता देता हूँ. ह्यूमन बॉडी में सबसे कॉमन साइनेप्स होते हैं केमिकल साइनेप्स. इन ह्यूमन बॉडी द मोस्ट कॉमन साइनेप्स आर केमिकल साइनेप्स. व्हाट आर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, उसकी बात करते हैं. व्हाट आर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, अब उसकी बात कर लेते हैं. जो सेकेंड टाइप ऑफ साइनेप्स होता है बच्चे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. सेकेंड टाइप ऑफ साइनेप्स इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में नहीं होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इट लैक्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो क्या केस होगा, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है एंड इट वुड बी क्लोजली अटैच्ड, इट वुड बी क्लोजली प्लेस्ड विद द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का रोल नहीं होता, तो स्पेशल ना आपके पास जंक्शंस होते हैं. स्पेशल जंक्शंस आर देयर which help in the transfer of action potential, which help in the transfer of several ions. What is the name of these junctions? These are the electrical connections, we call that gap junctions. These are electrical connection. आगे चल के पढ़ोगे सोडियम आयन का ट्रांसफर कर रहा है. तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है और गैप जंक्शन से दो न्यूरॉन आपस में अटैच्ड है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. दे आर वेरी रेयर इन ह्यूमन, दे आर वेरी रेयर इन ह्यूमन. इतना समझ में आता है कि केमिकल साइनेप्स में थोड़ा वक्त लगता होगा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र होने में, भले वो मिली सेकेंड क्यों ना हो. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में बहुत क्विकली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है. कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अगर होते हैं तो दे आर प्रेजेंट इन हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, इन हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन. अगर आपके बॉडी के अंदर सारे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते तो आप सुपर फास्ट से भी डुपर फास्ट हो जाते शायद. ठीक है, टच बाद में करते, शायद पहले फील कर लेते. तो ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम जब आप ना स्टिमुलस और रेस्पॉन्स करते हैं. स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में एक वक्त होता है, वो मिली सेकेंड्स में है, और वो वक्त लगता है आपका अराउंड द साइनेप्स. ठीक है, खैर इंफॉर्मेशंस नीड टू बी डिस्कस्ड इन आवर नर्वस सिस्टम चैप्टर. यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे हो, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपके दो तरह के साइनेप्स होते हैं. ह्यूमन बॉडी में सबसे कॉमन साइनेप्स है केमिकल साइनेप्स. केमिकल साइनेप्स जो सबसे कॉमन होता है वो एक्सोडेंड्रेटिक होता है. साइनेप्टिक क्लेफ्ट याद रख लेना 200 आर्मस्ट्रॉम और 20 नैनोमीटर. और तीन तरह के साइनेप्स ये याद रख लेना. दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जहाँ डायरेक्टली अटैच रहती है, और जो ये एक्शन पोटेंशियल है +30 वाला, वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता रहता है. तो ये जो इलेक्ट्रिकल जंक्शंस हैं ये एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसफ़र कर दें, ये एग्जैक्टली गैप जंक्शन है. और क्योंकि इलेक्ट्रिकल जंक्शन से एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र हो तो केमिकल इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं. यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र हो रहा था, उसके लिए वर्ड यूज़ किया था केमिकल साइनेप्स. तो बच्चों साइनेप्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ. आई हैव डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड द कंसेप्ट ऑफ साइनेप्स हियर. अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में. अब टिश्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइनेप्स से शायद ही क्वेश्चन आए, अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन से पूछे जाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द टिश्यू इज कंसर्न्ड.
एक्स्ट्रा चीज़ें ना इसलिए पढ़ानी होती है कि कई बार ना क्वेश्चन कहीं से भी रैंडमली उठा के दे देता है, भले वो टिश्यू का पार्ट है या नहीं है, और बच्चे भी अलग अलग किताबें पढ़ते रहते हैं। तो जब वो अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नज़र आती है, तो उनको पढ़ते हुए डाउट ना आए या ऐसा लगे कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, इसलिए कुछ चीज़ें कवर करनी पड़ जाती है। खैर, न्यूरॉन्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको टिश्यू में पढ़ना है, दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू योर अपकमिंग टेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेसेस जो भी किसी के पास एक एक्सॉन है, किसी के पास एक डेंड्राइट है, किसी के पास एक्सॉन डेंड्राइट है ही नहीं, किसी के पास खूब सारे डेंड्राइट है, किसी के पास जो भी कुछ है, उसके बिहाफ पर हम क्लासीफाई करते चले जाएंगे। देखो, न्यूरॉन सबसे पहले इवोल्व हुई थी, स्पॉन्जिस के अंदर नर्व सेल नहीं होती थी, नाइडेरियन के अंदर सबसे पहले नर्व सेल आई थी, और जो सबसे पहले नर्व सेल आई थी उसको बोलते हैं नॉन पोलर न्यूरॉन। तो जो फर्स्ट टाइप की आप पढ़ोगे दैट वुड बी योर नॉन पोलर न्यूरॉन। अब नॉन पोलर न्यूरॉन क्या होती है? इट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, इन्हीं को बोलते हैं प्रोसेसेस। वेल डिफाइंड एक्सोन और डेंड्राइट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इस तरह की है ये नर्व सेल, ये न्यूक्लियस, और जब एक्सोन और डेंड्राइट डिफाइंड ही नहीं है तो ना तो इनकमिंग ऑफ इम्पल्स डिफाइंड है, ना ही आउटगोइंग ऑफ इम्पल्स डिफाइंड है। अगर एक्सोन और डेंड्राइट डिफाइन हो गए बच्चों, तो आपको पता है एक्सोन में हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो आप बता सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन इस न्यूरॉन में किधर जाने वाली है, और डिफाइंड ही नहीं है तो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरफ जा सकती है। तो नॉन यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होती है? जब आपका प्रोसेसेस या पोलैरिटी डिफाइंड नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन किस तरफ ट्रांसफ़र होगी या हर तरफ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, उस न्यूरॉन को बोलते हैं नॉन पोलर न्यूरॉन। नॉन पोलर न्यूरॉन को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि क्या तो प्रोसेसेस होते ही नहीं हैं, क्या तो प्रोसेसेस, वैसे तो नॉन पोलर न्यूरॉन ज़्यादातर ऐसी होती है, पर नॉन पोलर न्यूरॉन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर प्रोसेसेस नहीं है, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन हर एक साइड में स्कैटर कर सकती है, और जो प्रोसेस है वो वेल डिफाइंड नहीं है तो इन्फॉर्मेशन हर साइड में स्कैटर करेगी। आप ये वाला डायग्राम याद रखें। तो अगर न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन हर एक साइड में स्कैटर कर दी, हर एक साइड में फ्लो कर रही है, उसको बोलते हैं नॉन पोलर न्यूरॉन। डू नॉट हैव वेल डिफाइंड एक्सोन एंड डेंड्राइट, नर्व इम्पल्स propagate to all sides। समझ में आया भाई? सबसे ज़्यादा प्रीमिटिव एनिमल विद नर्वस सिस्टम नाइडेरियन ही थे। अगर वेल डिफाइंड हो तो शायद दिक्कत आती, तो फास्ट या क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स हो जाता है। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होती है ये सवाल पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर तो भले ही ना पूछे। इट इज़ प्रेजेंट इन हाइड्रा। फिर ना ऑल द स्टूडेंट नोज के नॉन पोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रा, बट अ वेरी गुड स्टूडेंट नोज that non-polar neuron are also present in the eyes of human. In the eyes of human आप स्पेशल सेल पढ़ेंगे, इनको बोलेंगे एमाक्राइन सेल। In eyes of human you will learn about special cell which we call एमाक्राइन सेल। ये एमाक्राइन सेल जो होती है वो रेटिना के अंदर होती है। एमाक्राइन सेल इन ह्यूमन रेटिना। अब एमाक्राइन सेल ऑफ ह्यूमन रेटिना भी नॉन पोलर होती है, तो प्लीज़ ये याद रखना ही रखना। हाइड्रा वाला तो सभी को पता होता है। तो व्हाट आर नॉन पोलर न्यूरॉन्स विच डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड पोलैरिटी? ये शायद ना मैं थोड़ा सा आपको जब नर्वस सिस्टम जब क्लासिफिकेशन का बेसिस पढ़ा तब भी ये चीज़ बताई होगी मैंने। खैर बताई या नहीं बताई, अब यहाँ पे मैं अच्छे से बता देता हूँ। तो नॉन पोलर न्यूरॉन क्या होती है? जब आपका वेल डिफाइंड एक्सोन या डेंड्राइट नहीं होता है उसको नॉन पोलर न्यूरॉन कहते हैं। किस किस के पास होती है? हाइड्रा के पास होती है और एमाक्राइन सेल इन ह्यूमन रेटिना होती है। ठीक है। सेकेंड, जो सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे बच्चों, डेट वुड बी यूनिपोलर न्यूरॉन। जैसा नाम बता रहा है, जो यूनिपोलर न्यूरॉन होगा उसके अंदर कितनी पोलैरिटी आ जाएंगे, कितने प्रोसेस आएंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन इज हैविंग अ सिंगल एक्सोन, इट इज विद अ सिंगल एक्सोन।
तो समझ में आ रहा है कि भाई ये सेल बॉडी है और इस सेल बॉडी से एक प्रोसेस अराइज हो रहा है, ये एक्सॉन है। तो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे आ रही होगी और इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे जा रही होगी। इसी को अब बाद में तो एक्सॉन टर्मिनल ही बता देना, इसी को बोलते हैं बेटा यूनिपोलर न्यूरॉन। तो एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है। देखो एक्सॉन तो हमेशा सिंगल होगा, नो फन इन टेलिंग, इसको थोड़ा सही लिखते हैं, विद ए सिंगल प्रोसेस डेट इज एक्सॉन। डेंड्राइट वगैरह नहीं होते हैं उसमें। तो इसमें इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर हमेशा जाएगा एक्सॉन से। तो जब आपके पास सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है न्यूरॉन के अंदर, उसको बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। जब एम्ब्रियो के केस में, ह्यूमन एम्ब्रियो के केस में जितनी भी न्यूरॉन होती हैं वो पहले यूनिपोलर ही होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन, एम्ब्रियो ऑफ ह्यूमन। तो पहले एक्सॉन बनता है, बाद में फिर सेल बॉडी से डिवीजन होके बनने शुरू होंगे आपके पास डेंड्राइट। तो नॉन पोलर कहाँ होती है बेटा? हाइड्रा में। नॉन पोलर कहाँ पढ़ी आपने? हाइड्रा एंड एमाक्राइन सेल। यूनिपोलर कहाँ पढ़ लिया आपने? ह्यूमन एम्ब्रियो। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल प्लीज याद रखेंगे, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ साथ लिखता जा रहा हूँ इनको। यूनिपोलर इज ह्यूमन एम्ब्रियो। फिर तीसरा केस क्या बनेगा हमारे पास? थर्ड केस वुड बी, चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, अब ना मुझे नाम बताना उस सेल का। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, आप उस सेल का नाम बता देना बस मुझे कि भाई यहाँ पर ये सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे ब्रांचिंग है और वो टूवर्ड द सेल बॉडी लेके आ रहा है इन्फॉर्मेशन। टूवर्ड द सेल बॉडी जो प्रोसेस करेगा वो बता देना। और ये एक प्रोसेस है, इसमें भी ब्रांचिंग है और ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जा रहा है। तो जो फॉर्म अवे फ्रॉम द सेल बॉडी वो कौन सा हुआ? एक्सॉन। और जो टूवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी वो कौन सा हुआ? डेंड्राइट। और ये क्या हुआ? सेल बॉडी। तो ये डेंड्राइट के प्रोसेस और ये एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन आर्बोराइजेशन। तो इसका क्या नाम होना चाहिए बच्चे? कितने पोल्स हैं इसके पास, कितने प्रोसेस है? 2। वी कॉल दैट बाइपोलर न्यूरॉन। So this neuron here is bipolar neuron. In bipolar neuron, there are two processes arise from cell body. One is which is taking impulse towards the cell body, that is centripetal. We call that dendrite. And other which is taking impulse away from the cell body, that is axon. Bipolar neuron कहाँ होती है? जितने भी आपके sensory neurons होते हैं वो bipolar हैं. They are present. They are mainly sensory structures. सेंसी स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हो गए? जैसे आपकी जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है, द थिंग विच यू स्मेल, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज हैविंग बाइपोलर न्यूरॉन। रेटिना ऑफ योर आई इज हैविंग बाइपोलर न्यूरॉन। रेटिना ऑफ आई में यूनिपोलर भी होती है, बाइपोलर भी होती है। अगर एमाक्राइन सेल पूछा है तो रेटिना ऑफ आई में नॉन पोलर भी होती है, बाइपोलर भी होती है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अगर उसने एमाक्राइन सेल का नाम पूछा है तो ही आप उसमें नॉन पोलर आंसर करेंगे। अगर उसने एमाक्राइन सेल का नाम पूछा है तो ही आप आंसर करेंगे नॉन पोलर। अगर उसने सिंपली क्वेश्चन पूछा है रेटिना ऑफ आई में कैसी न्यूरॉन होती है तो आप बाइपोलर ही आंसर करेंगे। देयर आर सो मेनी बाइपोलर न्यूरॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई एंड अप टू योर लेवल आपको रेटिना ऑफ आई में बाइपोलर ही याद रखनी है। मगर अगर वो एमाक्राइन सेल का एग्जाम्पल पूछता है तो ही आप याद रखेंगे कि नॉन पोलर भी होती है। ठीक है बच्चों, आई गेस आई मेक ए वेरी क्लियर कंसेप्ट। तो रेटिना ऑफ आई में होता है। फिर आपका जो कॉकलिया होता है उसके अंदर मिल जाएगा ईयर में जो हियरिंग ऑर्गन है, हियरिंग स्ट्रक्चर, इसके अंदर ऑर्गन ऑफ कोटा हियरिंग ऑर्गन होता है। और जो आपका वेस्टिब्यूलर एपरेटस होता है, आपको पता नहीं ईयर के 2 काम होते हैं और जो प्राइमरी फंक्शन है ईयर का वो तो बैलेंसिंग है, सेकेंडरी फंक्शन हियरिंग था। तो बैलेंसिंग ऑर्गन इज वेस्टिब्यूलर ऑर्गन एंड हियरिंग पार्ट इज कॉकलिया ऑफ इंटरनल ईयर। तो आपकी जो सेंसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो, रेटिना ऑफ आई हो, या कॉकलिया वेस्टिबुलर एपरेटस ऑफ इंटरनल ईयर हो। इंटरनल ईयर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। उसमें क्या मिल जाएगी आपको? बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन का क्या क्या याद रखेंगे बच्चों? देखो लोकेशन रेटिना ऑफ आई बाइपोलर में याद रखना है। अगर एमाक्राइन सेल हो तो ही नॉन पोलर न्यूरॉन याद रखना। ठीक है, आर वी डन अप टू हियर? नेक्स्ट,
फिर एक और मैं बना देता हूँ, उसका जो नाम बताएगा उसको मेरी तरफ से खूब सारी शाबाशी। ये मत कहना अपनी शाबाशी अपने पास रखो। ओके, दिस इज अ सेल बॉडी हियर, and from this cell body arises one process. What is the name up to now? The name up to now is unipolar, but this process get bifurcate and it divide into two processes. This process gets bifurcate and divides into two processes. In one, information is towards the cell body, and in other, information is away from the cell body. So let's say this is axon here, this is dendrite here. It look as it is having two processes, we can call that bipolar, but these two processes are arise from a single pole. So initially it was unipolar and later on it modifies. The name of this neuron is pseudo unipolar neuron. The name of this neuron is pseudo unipolar. सूडो बाइपोलर नहीं होता है क्योंकि ये डेवलप किया है एक सिंगल प्रोसेस से। अगर दो प्रोसेस से डेवलप होती बात तो हम सूडो बाइपोलर कहते हैं। एक सिंगल प्रोसेस से डेवलप हुआ तो नाम हुआ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी से पहले अराइज होता है सिंगल प्रोसेस और वो आगे चल के बाइफर्केट कर जाता है और वो एक्सोन और डेंड्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आपसे यहीं से सवाल पूछा जाएगा, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ होती है? The example of this is they are present in dorsal root ganglion of spinal cord. अब अगर किसी बच्चे को इसका लोकेशन इमेजिन करना है, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबडी, तो उसको स्पाइनल कोड पढ़ना पड़ेगा। और स्पाइनल कोड में मैं आपको जब स्पाइनल कोड पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कौन सा गैंग्लियन डोर्सल साइड होता है और कौन सा गैंग्लियन वेंट्रल साइड होता है। और जो गैंग्लियन डोर्सल साइड है उसके अंदर होते हैं सूडो यूनिपोलर। तो आप फॉर द टाइमिंग बस लोकेशन याद रखें, दे आर प्रेजेंट इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है बच्चों, कितने टाइप हो गए? 4 टाइप्स, नॉन पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड सूडो यूनिपोलर। अब जो डायग्राम आप अब तक पढ़ते आए हो, जिस सेल का डायग्राम आप पढ़ते आए हो वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। अच्छा, उसका नाम बताओगे क्या होगा? अब तक तुमने पढ़ा है कि भाई यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से सेल बॉडी से खूब सारे प्रोसेस अराइज होते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। और इन डेंड्राइट से एक तरफ एक लंबा सा प्रोसेस अराइज होता है जिसको बोलते हैं एक्सोन। तो कितने पोलर हो जाएंगे? कितनी पोलरिटी है? मल्टीपोलर। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन अवर बॉडी इज लाइक व्हाट? मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन अवर बॉडी कैसी होती है? आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी मल्टीपोलर। तो जो लास्ट है, जो सबसे कॉमन न्यूरॉन्स हमारे पास होंगी उनको बोलेंगे बच्चों मल्टीपोलर न्यूरॉन। द नेक्स्ट इज और लास्ट वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, मैनी डेंड्राइट with one axon and these are most commonly found, इनका लोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, in vertebrates, human and other as well. So depending upon the process, जो न्यूरॉन्स होती हैं वो 5 तरह की होती हैं। अगर वेल डिफाइंड प्रोसेस नहीं है तो नॉन पोलर। 2 क्लासिकल एग्जाम्पल, एक हाइड्रा और एक एमाक्राइन सेल। अगर एक ही वेल डिफाइंड प्रोसेस है वो एक्सोन है, एक वेल डिफाइंड प्रोसेस और डेंड्राइट ऐसी न्यूरॉन नहीं होती है कि न्यूरॉन्स आगे मैसेज पास करने के लिए उनको एक्सोन की जरूरत पड़ेगी। वो साइनेप्स में आप समझ गए होंगे शायद। तो यूनिपोलर कहाँ होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाइपोलर सेंसरी स्ट्रक्चर्स में। 3 याद रख लेना, रेटिना, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड वेस्टिबुलर एंड कॉक्लिया। सूडो यूनिपोलर dorsal root ganglion of spinal cord and multipolar all of the neurons। ठीक है बच्चों, एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया। जो सेकंड क्लासिफिकेशन होता है, is there anybody in our class who want to be neurologist? I wish you can tell me. Neuroscience is one of the toughest science, remember, but don't worry, अभी तो आपका इंट्रोडक्शन है ये, आगे चल के I will be making it very easy and that is very fun to learn, don't worry। नर्वस सिस्टम को हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, बट आई एम लिटिल बिट कंसर्न्ड अबाउट
कि जिस तरह से सिलेबस चल रहा है हमारा, वी आर इन सितंबर एंड स्टिल ऑन टिश्यूज़। खैर इस पर कुछ करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह शुरू होंगी शायद अब लॉकडाउन के बाद। ओके ओके ओके, सेकेंड क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन इम्पल्स दे ट्रांसफर। देखो एक बहुत छोटा सा मैंने एक चार्ट बनाता हूं आपको समझाने के लिए। यह है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों है। यह है आपका रिसेप्टर जो स्टिमुलस रिसीव करेगा, और जो भी कोई एक्शन होगा उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इफेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, मैंने आपको आवाज़ लगाई कि प्लीज़ खड़े हो जाइए, तो रिसेप्टर क्या था वहाँ पर, आपके ईयर्स, जिन्होंने चीज़ों को रिसीव किया, स्टिमुलस को रिसीव किया, इन्फॉर्मेशन गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एक डिसीजन लिया कि खड़े हो जाना है, तो मूवमेंट ऑफ लेग होना शुरू हो गया। तो इफेक्टर क्या है, इफेक्टर लेग की मसल क्या है, इफेक्टर है। वो न्यूरॉन्स जो इम्पल्स को, जो सेंसरी इम्पल्स को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाती हैं, वो न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन को टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टूवर्ड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लेके जाती हैं, उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। उनको बोलते हैं बेटा सेंसरी न्यूरॉन। और दूसरा नाम होता है उनका एफरेंट। एफरेंट का मतलब होता है इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। तो सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन क्या होती हैं, दे आर द वन विच कैरी इन्फॉर्मेशन टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेके जाती इफेक्टर तक, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू द इफेक्टर, उनको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। तो मोटर इज आउट गोइंग राइट, और इफरेंट न्यूरॉन। तो इफरेंट होती है आउट गोइंग और एफरेंट होती है इनकमिंग। द इंग्लिश वर्ड इफरेंट इज द वर्ड फॉर आउटफ्लो एंड एफरेंट इज द वर्ड फॉर इनवर्ड फ्लो। तो सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन आर दोज वन विच कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन आर दोज वन विच कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चे। अब कुछ न्यूरॉन्स होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो अलग अलग पार्ट को ना इंटीग्रेट करती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट को कनेक्ट करती है दूसरे पार्ट से। ना तो वो सेंसरी होती है और ना ही वो मोटर होती हैं। दे आर नॉट सेंसरी, दे आर नॉट मोटर, ये भी याद रखना। इनके लिए वर्ड यूज करते इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन्स आर द स्पेशल न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। What they do? They help in interpretation of information. They interpret information and they help to coordinate between different part of brain. Coordinate between different part ऑफ CNS। तो वो न्यूरॉन जो ना तो मिक्स्ड है, जो ना तो आपके पास सेंसरी है, ना ही आपके पास मोटर है, इनको मिक्स भी नहीं कहेंगे। वो न्यूरॉन विच आर नाइदर सेंसरी नो मोटर एंड दे हेल्प इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे आर नोन एज इंटर न्यूरॉन। और दूसरा नाम होता है इनका इंटरनंशियल न्यूरॉन्स। सो इंटर न्यूरॉन्स और इंटरनंशियल न्यूरॉन क्या होती है बेटा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट को कोऑर्डिनेट करती है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करती है, नॉट इंटरप्ट, इंटरप्रेट करती है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब समझ में आ गया, जो इंफॉर्मेशन टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जा रही है, सेंसरी और एफरेंट। और मोटर न्यूरॉन का कंसेप्ट समझ में आ गया, जो इंफॉर्मेशन को अवे फ्रॉम द नर्वस सिस्टम लेके जा रही है। आर वी डन अप टू हियर? अब एक और बताएं तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड भी क्या होती है। माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द माइलिनेशन could be myelinated or could be non myelinated or could be medulated or non medulated। ठीक है, वन मोर क्लासिफिकेशन। सो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन आप पढ़ेंगे बच्चों, डेट वुड बी myelinated and non myelinated depending upon myelination। it could be myelinated
और इट कुड बी आल्सो मेडुलेटेड, और इट कुड बी नॉन माइलिनेटेड, और इट कुड बी आल्सो नॉन मेडुलेटेड। ठीक है बच्चों, अब माइलिन कहाँ का बना होता है? माइलिन शीथ होती है इनके पास, और माइलिन शीथ कहाँ की बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ, माइलिन शीथ इज मेजरली मेड अप ऑफ लिपिड as well as it consists of certain water and certain proteins. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको पता है जहाँ जहाँ माइलिन शीथ होती है वहाँ पर माइलिन शीथ देखने में वाइट होती है, ग्लिसनिंग वाइट, शाइनी वाइट। तो जहाँ जहाँ पर माइलिन शीथ आ जाती है वहाँ पर ना वाइट होना शुरू हो जाता है। आप आगे चल के नर्वस टिश्यू में कहीं वाइट मैटर पढ़ो तो वाइट मैटर वो पार्ट होता है जहाँ पर खूब सारा माइलिन शीथ है, और जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होता है उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। तो एग्जैक्टली आपका जो नर्वस टिश्यू है उसका कलर कैसा है? ग्रे कलर का है। पर जहाँ जहाँ पर माइलिन शीथ हो जाता है वहाँ पर वो वाइट हो जाता है, और जहाँ माइलिन शीथ नहीं होता है वहाँ पर वो ग्रे मैटर हो जाता है। अब ये माइलिन शीथ कहाँ होती है? आपको पता है कि मेजरली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल नहीं होती हैं, पर सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड होता है। कोई और सेल है जिसका नाम ओलिगोडेंड्रोसाइट पढ़ाऊंगा कल मैं, और वो माइलिन बनाती है वहाँ पर। तो मेनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, चाहे वो आपका क्रेनियल नर्व हो या आपका स्पाइनल नर्व हो, वो सारी ही माइलिनेटेड होती है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग नर्व्स आर माइलिनेटेड? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉन माइलिनेटेड? नॉन माइलिनेटेड अगर प्रेजेंट होता है तो पीएनएस में प्रेजेंट होता है। इन पीएनएस कौन कौन सी? सोमैटिक नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व। ये जो वर्ड है ये अभी के लिए ना आप ना भी समझे तो कोई इशू नहीं है, ये कंसेप्ट अभी टिश्यू में नहीं पढ़ा जाता, ना पूछा जाता है। ऑटोनॉमिक वो है, देखो सोमैटिक वो होता है जो वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, ऑटोनॉमिक वो होता है जो इनवॉलंटरी कंट्रोल में होता है। तो पीएनएस में ही होता है नॉन माइलिनेटेड, सीएनएस सारा ही माइलिनेटेड है। तो व्हाइट मैटर होता है माइलिनेटेड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, और ग्रे मैटर होता है नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नॉन माइलिनेटेड पार्ट कहाँ कौन सा होता है? मेनली सेल बॉडीज। सेल बॉडीज कैसा होता है? नॉन माइलिनेटेड। डेंड्राइट कैसा होता है? नॉन माइलिनेटेड। और माइलिनेटेड पार्ट कौन सा होगा? मेनली एक्सॉन। तो अगर आपके पास खूब सारे एक्सॉन्स हैं, एक बंडल ऑफ एक्सॉन नजर आ रहा है यहाँ पर, तो इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? ये माइलिनेटेड एक्सॉन है तो बोलेंगे व्हाइट मैटर। और आपके पास बंडल ऑफ सेल बॉडी नजर आ रहा है, सेल बॉडी कभी माइलिनेटेड होंगे? आंसर इज नो। तो इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? ग्रे मैटर। इस वाले एरिया को बोलेंगे ग्रे मैटर, और इस वाले एरिया को बोलेंगे व्हाइट मैटर। आप देखो ना, ये क्लास 10th में पढ़ा देते हैं। आप ब्रेन का ना एक पार्ट ले रहे हो, ये आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन है, इनर पार्ट ऑफ ब्रेन है। आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन कैसा होता है? ग्रे मैटर। आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन कैसा होता है? ग्रे मैटर। और इनर पार्ट कैसा होता है? व्हाइट मैटर। इज दैट क्लियर? ये तो ब्रेन के लिए है। स्पाइनल कोड का एकदम उल्टा हो जाता है। स्पाइनल कोड में बाहर वाला पार्ट कैसा होता है? व्हाइट मैटर, और अंदर वाला पार्ट कैसा होता है? ग्रे मैटर। खैर अभी ये चीज़ ना याद रखो। तो भाई आपके पास व्हाइट मैटर ग्रे मैटर का कंसेप्ट समझ में आया। व्हाइट मैटर इज द माइलिनेटेड पार्ट और जनरली एक्सॉन्स, एंड ग्रे मैटर इज द नॉन माइलिनेटेड पार्ट और जनरली डेंड्राइट और सेल बॉडी। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व जो है उसमें माइलिनेशन नहीं होता है, वो मेनली प्रेजेंट होती है सोमैटिक नर्व और ऑटोनॉमिक नर्व में। और जो माइलिनेटेड नर्व है उसमें माइलिन शीथ होती है लिपिड की, जिसकी वजह से वो व्हाइट हो जाती है, व्हाइट मैटर होता है, वो प्रेजेंट होती है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में। ये हो गया बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको न्यूरोग्लियल सेल के बारे में, और न्यूरोग्लियल सेल के बाद में कुछ कंसेप्ट और बता दूंगा कि भाई नर्व्स क्या होती है, न्यूक्लियाई क्या होता है, गैंग्लियन क्या होता है, ट्रैक्ट क्या होता है, और टर्मिनोलॉजी बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, यहीं रुक जाते हैं। गो थ्रू द लेक्चर, और जो जो चीज़ें बताई है प्लीज़ टाइप ऑफ न्यूरॉन अच्छे से समझे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आई विश यू वेरी गुड लक। क्लास इज डिसमिस्ड।